The journey is never ending. There's always gonna be growth, improvement, and adversity. You just gotta take it all in do what's right, continue to grow, continue to live in the moments. So, starting for a new chapter of learnings, I, Anjali Kushwaha, being your host for today's event, wants to extend a warm greeting and good morning to all of you present here, and I hope you all are doing amazing. On the behalf of SEMS Welfare Family, I welcome you all for today's international webinar on the topic Understanding Exhaustion and Burnout. And to add our guest of honor and today's speaker, Ms. Shantini Moon, it's a great honor to have you, ma'am. We are grateful for your presence. So, also, I see a quite of number of people are still joining. So, before I proceed, let me take a brief moment for the introduction of our organization. SEMS Welfare Foundation is a non-profit entity established to work in the areas of education, social welfare, women empowerment, skill development, and entrepreneurship, livelihood generation, health, research, culture, international cooperation, sports, environmental protection, or any other similar sectors. We promote healthy lives, a balanced and active community, and strong business. Now, let me introduce our today's speaker to all of you, Ms. Shantuni Moon. She's a life coach and CEO of Being My Moon. She helps corporate offices and college students by training them in different life skills for improving their productivity, motivation, and profitability. They have worked with 1,000 plus graduate students and collaborated with colleges on understanding on how to find one's purpose, learning how to learn fast and improve creativity, and they also help students to gain internship and provide placement assistance. She is currently a student wellness mentor of SCAN organization. It's an NGO that works towards the identify and uplifting talent underprivileged students in the society. And she's also a data scientist and work on the projects for the improvement of human life with the help of AI and machine learning. Thank you, Anjali. That was a really nice welcome. Thank you, everyone, for joining. I am so excited to be talking to you at the end of this session. Today is a very interesting topic that we're going to talk about. It is about understanding burnout and exhaustion. Interestingly enough, when I was asked to give the topic for this series that we're doing in May, I was given a little deadline कि मैम थोड़ा जल्दी चाहिए because announce करना है ये है वो है, and I was traveling, and every time I give a speech or a talk, none of my talks are written. I want it to be very natural and fluid, and I want it to be instinctive. So I said, give me some time, let me find some kind of inspiration, and then let me give it to you. So I was actually traveling 800 kilometers to my nanny's house. There was a emergency there, and the next day we all got together. Everything was well, and my uncle was talking about the incident in his office. My uncle is the big manager in one of the leading banks in India, and he is at the top of his positions that are there. One of his colleagues, who's also in the similar position, he was telling about him. He said that, Shrantani, we usually think that if I earn money, if I get a bigger position, the things that I have to face right now will go away. हमें कई बार आता है ना, थोड़े से और पैसे होते ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होते, थोड़ा बड़ा घर होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती. And he said, Shrantani, he had everything, and he was a 50-year-old man. He had everything, and there was this minor issue in the proceeding of the payment, है ना, थोड़ा सा डिले हो गया. जो आदमी को उन्हें पेमेंट बैक करना था वो थोड़ा सा लेट हो गया, and he kind of stopped his account in the bank. There is a legal procedure to sort certain matters out, but the only thing was he was at this upper position, and he had a sort of an identity that revolved around him. हम कोई भी काम करते हैं ना, हम वो काम के अराउंड अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं. अगर मैं 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ तो मैंने उस तरह से खुद को प्रोग्राम किया कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ये मैं हूँ. जैसे ही हमारे काम के ऊपर कोई थोड़ा सा भी
एक प्रॉब्लम आ जाता है ना, सब कुछ हिलने लगता है। इसीलिए रीजन है कि जब बच्चे 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, 10th में होते हैं, इतना अननेसेसरी प्रेशर उन पे बना के रखा होता है। इवन मुझे बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारे एमबीए के स्टूडेंट्स भी हैं। सो वहां पे भी हमें बार बार ये प्रोग्राम किया जाता है, दिस इज हु यू आर, दिस इज हु यू आर, विच इज गुड, राइट, विच इज नाइस दैट, क्योंकि जब जब हम बोलते हैं ना कि दिस इज हु आई एम, वी एक्ट दैट वे। व्हेन वी से आई एम अ ग्रेट पर्सन, आई एम अ जीनियस, हम उस तरह काम करते हैं। But we should never get too attached with the label that is given to us by the society or the kind of work that we are doing, because we are so much more than that. All right, so getting back to the story, थोड़ा सा एक ऐसा इशू हो गया जहाँ पे वो पेमेंट अगर जल्दी नहीं हुआ तो देयर बी अ लॉन्ग लीगल प्रोसीडिंग, और वो फ्रॉड केसेस में आ जाएगा एक्सेट्रा। बट नथिंग टू वरी अबाउट, कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं। एंड उस उनके नीचे जो दो सबॉर्डिनेट्स है जो जस्ट ज्वाइन हुए, वो भी बहुत बड़े पोजीशन पे, they were not scared. They were like, we have a process for this, we're not going to worry about this. And this boss of theirs, जिन्होंने ऐसे कई सारे केसेस पहले भी देखे होंगे और उनको पता है कि क्या प्रोसेस होता है, still he got so worried about it that he just went ahead and killed himself. And I was, he said that we were all so shocked. There was nothing that was needed in his life. Like, he had everything, the biggest house that he wanted, the holiday house that he wanted, family, children, and still. So, हम सब भी हमारी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स थ्रू जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए उस टाइम के लिए बहुत बड़ी रहती है, किसी और के लिए वो उतनी बड़ी नहीं होगी। नाउ द थिंग इज कि हम कभी भी कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन में हो ना, हम एक रूम में एंटर करते हैं। अभी भी मैं अगर आपको बोलती हूँ, चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है सब लोग। आप जहां पर भी बैठे, आप एक सिचुएशन को याद कीजिए जब आप बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसी कोई सिचुएशन जब आपको समझ ही नहीं आया कि अभी मैं क्या करूं। रिजल्ट लगने के पहले हो सकता है, या फिर आप हॉस्पिटल में बैठे होंगे, कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन आखिरी जो आपको याद है, जिसने आपको बहुत परेशान। थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड। सब लोग आंखें बंद कर सकते हैं। जस्ट गो बैक इनटू दैट मेमोरी जहाँ पे यू फेल्ट रियली वरिड। हर एक मोमेंट को सेकंड बाय सेकंड याद, जो भी पेन, टेंशन, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी फील हुई है, उसे महसूस करें। धीरे धीरे अभी अपनी आंखें खोलें। जिस मोमेंट आपने उस बारे में सोचा, उस मोमेंट आपकी बॉडी आपको एक फीलिंग देती है। अभी भी आप देखें, अभी आप जो फील कर रहे हैं वो 5 सेकंड पहले नहीं फील कर रहे थे। आप 5 सेकंड पहले थोड़े से रिलैक्स थे, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज वी एंटर अ रूम। हर सिचुएशन एक कमरा बनाती है, हर रिलेशनशिप एक कमरा बनाती है। एंड द मोमेंट वी आर इवन थिंकिंग अबाउट इट और वी आर लिविंग इट, वी एंटर दिस रूम। अब आप मुझे बताइए, आपको किसी भी रूम से निकलने का क्या तरीका? आप इसको चैट पे भी लिख सकते हैं। किसी भी रूम से निकलने का क्या तरीका है? बस दरवाजे के बाहर निकल आइए, isn't it? लेट्स जस्ट ओपन दिस सेंटेंस, ठीक है? कि मैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ एंड आई वॉन्ट टू जस्ट गेट आउट ऑफ इट। मुझे उस कमरे से बाहर निकलना। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हम हमेशा हर समय अपने साथ अपनी बॉडी लेके चल रहे हैं। हम जिंदा है या नहीं है, ये हमारी बॉडी बताती है। हमारे पास हमेशा ये ऑप्शन रहता है कि हम इस पल में जीवित रहे या नहीं रहे। और हर पल हम ये डिसीजन लेते हैं, जब जब हम सांस लेते हैं, कि मुझे जिंदा रहना है। ये सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट है, जो भी है, आड़ी है, टेढ़ी है, बट आई वॉन्ट टू बी अलाइव इन दिस। व्हाई डू आई वॉन्ट टू बी अलाइव इन दिस एज अ ह्यूमन? ये जो भी सब होता है ना, जैसे हमारी मूवीज चलती है, राइट? मूवी में कितने सारे एपिसोड्स होते हैं, है ना? पर हमें पता होता है कि वो मूवी चल रही है। हमारी लाइफ भी वैसे ही है। इवन दो हमें लग रहा है कि सब कुछ कितना ज्यादा डिफिकल्ट है और मुझे इस चीज में जीतना है, और ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो वो होगा। आई गारंटी यू, अगर आप 5-6 दिन बाद, कभी कभी ऐसा होता है ना, ये 1 सेकंड का लेट हो गया तो बहुत बड़ा कुछ ये हो जाएगा। आज ये नहीं किया तो ये बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरा। एंड कभी कभार वो सच भी होगा। पर अगर वो नहीं भी हो पाया ना आपसे, इस मोमेंट पे आपसे वो सही चीज नहीं भी हो पाई,
आपको फिर चांस मिलेगा। हमको सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या होता है, खुद का वो बैलेंस लाना। जैसे ही हम खुद के अंदर वो बैलेंस ला पाते हैं ना, हम उस कमरे के बाहर खुद को रख के उस सिचुएशन को एज अ थर्ड थिंग देख पाते हैं। और जैसे ही हम उस चीज को थोड़ा दूर से देख पाते हैं ना, हमें समझ आता है सबसे पहली बात कि हम इसको टैकल करने के लायक, ये सिचुएशन हमसे बड़ी नहीं है, राइट? तो और ये भी ना, ये बोलने में जितना सिंपल सेंटेंस है ना, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, ये चीज आप करके देखिए। ओके, चलिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये एक एक्सपेरिमेंट किया, तो मैं एक बुरी टीचर नहीं हूँ, तो मैं आपको उस रॉन्ग व्यू के साथ नहीं छोड़ूंगी। आई टीच यू हाउ टू गेट आउट ऑफ अ मूवमेंट, है ना? अब देखिए कि, चलिए पहले तो ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो एवरीवन, जहां पे भी आप बैठे आराम से आप बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर ली, राइट? क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड साइ आउट ऑफ द माउथ। ओके, सो दोबारा उस मोमेंट में जाइए जहाँ पे आपको बहुत डिफिकल्ट, अनसर्टेन और मुश्किल भरा लगा। फील द मोमेंट। जो भी टेंशन हो रहा है, जस्ट फील द मोमेंट। कोई भी पेन को, दर्द को भगाने की कोशिश ना करें। जस्ट बी इन दैट मोमेंट and feel every ounce of everything that is happening. Take another deep breath in, hold, and sigh out of the mouth. Now place your hand on your heart and one hand on your stomach. Okay. Now take another deep breath in, hold, and sigh out of the mouth. Okay. Now see that situation. Keep your eyes closed, everyone. Now keep imagining that situation that was there, and slowly think of it in the palm of your hand. उस सिचुएशन को अपने हाथों में आते हुए देखें, जैसे कि कोई एक चीज हो, उसको हाथ में पकड़ने जैसा देखें। जो भी सीन है, आप जिस कमरे में बैठे हो, जो लोग हैं, सारे उस हाथ में लाइए। तो वॉच दैट हैंड, उस हाथ को नोटिस कीजिए। सारे लोग जो वहां परेशान हैं, वो जगह, वो बिल्डिंग, जो भी हलचल हो रही है, जो भी चीख चिल्लाहट सब कुछ हो रही है, उसको अपने हाथ में देखिए और देखिए कि धीरे धीरे वो जो आपके हाथ में है सब, वो और छोटा छोटा होते जाए। और अभी उसे धीरे धीरे जाता हुआ देखिए। ब्रीद इनटू इट, टेक अ डीप ब्रेथ इन, और उसे फूंक मारते हुए वो चीज को जाने दें। एवरीबॉडी जस्ट डू इट विथ ऑल योर हार्ट। आपको अगर एक बारी नहीं है तो आप दो तीन बारी उसे फूंके, एक डीप ब्रेथ ले और उसे फूंक मार के जाने दें। अपने शोल्डर्स को नीचे छोड़ते, अपनी जीभ को ताले से नीचे छोड़ते, अपने होठों के बीच में डिस्टेंस लाए, आईब्रोज को रिलैक्स करते, माथे के बीच में डिस्टेंस लाए, कान, गला, शोल्डर सब कुछ एकदम छोड़ दे, रिलैक्स कर दे। पैरों से सारी अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो हलचल और एनर्जी है उसको जाने दे। नाउ यू आर फ्री आउट ऑफ द मोमेंट दैट हैज कैप्चर्ड यू। टेक अनदर डीप ब्रेथ इन एंड साइ आउट ऑफ द माउथ। आप धीरे धीरे अपने अनुसार आंखें खोल सकते हैं। जब आपने वो इंसिडेंट याद किया होगा, तो आपकी बॉडी अलग अलग सेंसेशंस वो प्रोवाइड करती है। इट फील्स लाइक एज इफ यू आर लिविंग इट राइट नाउ। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा दर्द या पेन सिर्फ 90 सेकेंड्स के लिए दे सकती। दैट इज हाउ मच पेन वी आर केपेबल टू टेक इन। 90 सेकेंड्स के लिए सिर्फ कोई चीज बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकती है, फिर वो सिचुएशन हो, इंसान हो, कुछ भी हो। बट हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन को अपनी पुरानी हर सिचुएशन के साथ जोड़ के स्टोरी बना लेते, एंड देन फिर वो स्टोरी हमारी लाइफ का पार्ट होने की जगह या लाइफ का कोई एपिसोड होने की जगह हमारी आइडेंटिटी बन जाती, हमारी पूरी लाइफ स्टोरी बन जाती। कभी कभी बच्चों को कोई बैकलॉग्स आता है, ऐसा कुछ आता है, आप कभी उनसे मिलने भी जाए ना, अगर वो उस बैकलॉग्स के बारे में मेंशन ना करे, they somehow feel that they are betraying the other person. We have to realize that no matter what we do, we deserve love and appreciation and respect, at least from our own self. और हम ये जो सेल्फ लव की बात करते हैं, इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। आज मैं आपके साथ आज आई हूँ, आप खुद के साथ 24 घंटा पूरा साल रहते हैं, एंड हर मोमेंट किसी और का हो ना हो, पर आप खुद के पास इतना प्यार होता है कि आप ना सिर्फ खुद को खुश रख सके, पर अपने आसपास के कई सारे लोगों को खुश रख। पर बाकी लोगों को खुश रखना इज अ वेरी डिस्टेंट थिंग, अगर आप
खुद ही को वो प्यार और खुशी नहीं दे सकते। हम जितनी बारी दिस वर्ड एग्जॉशन, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। कोई वाटर ड्रॉपलेट देखा है आपने? जमीन पे पानी गिरा है ना, और अगर आप थोड़ी देर बाद जाके देखते हो पानी पूरी तरह इवेपोरेट हो जाता है, राइट? व्हाट हैपेंस विद दैट? पानी में क्या तत्व रहता है? पानी क्या रहता है? मॉइस्चर। मॉइस्चर देना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसका। जब हम बोलते हैं कि पानी एग्जॉस्ट हो गया है ना, वो वहां पे पानी पड़ा था, वो अपने आप इवेपोरेट हो गया, एग्जॉस्ट हो, इट मीन्स कि जो भी उसके अंदर था वो सब चला गया। कैन यू फील दिस? दैट जब हम एंथुजियाज्म, क्यूरोसिटी, हम जब स्कूल में पहले दिन जाते हैं, जो फीलिंग रहती है वो टू नो, टू अंडरस्टैंड, टू ट्राई वंस अगेन, वो जो सारी फीलिंग रहती है, दैट वार्म enthusiasm, that is the moisture in us, that is the life in us. And when we say we are exhausted, that means that everything that made us, वो सारी creativity, curiosity, वो सारा gratitude, thankfulness जो था, वो सब उड़ गया है। अब ये होता कैसे? ये धरती पे, ये यूनिवर्स का एक रोल है। हर चीज जो भी ठीक तरह से काम कर रही है, वो कोई भी दो ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से काम कर रही है। आप चलते हैं, राइट? हम जब वॉक करते हैं तब हमें आगे लेके जाने के लिए ग्रेविटी काम आती है, पर उसी तरह से जो फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तभी हम वॉक कर पाते। उसी तरह दिन है तो रात भी है, बहुत धूप है, गर्मी है तो बारिश है ना? सो हर चीज ब्यूटीफुल इसीलिए है क्योंकि वो एक ऑपोजिट चीजों को बैलेंस करते हुए साथ में चल सकते। उसी तरह इंसान, जब हम बोलते हैं कि एक वाटर ड्रॉपलेट एग्जॉस्ट हो गया, मतलब एनवायरनमेंट की हीट ने उससे वो मॉइस्चर ले लिया, एंड एवरीथिंग दैट वाटर ड्रॉपलेट हैड इज इवेपोरेटेड, इज जस्ट गॉन। इंसान के साथ ही था, हम खुद भी तो पानी है 60%। सो आसपास के एनवायरनमेंट की हीट के वजह से हमारे भी अंदर सेम प्रोसेस होता है। जब हम हमारी बॉडी से कम कनेक्टेड होने लगते हैं, मतलब कि हम हमारे दिमाग में ज्यादा रहे, ये काम करना है, वो काम करना है, ये है वो है, वेरी गुड, you should do the work, and there is some sort of sweet pleasure in competition. I agree to that. I compete a lot. That's my favorite thing to do. But at the same time, we cannot forget the fact that this world is moving forward because a human is so powerful because we can ask for help. We can say that, you know what, it is my time to rest now. It is my time to just spend the entire day doing absolutely nothing. आजकल हमें वो कॉन्सेप्ट भी बहुत सिखाया जाता है, दैट वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। सो पार्टी करते तभी भी क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट ही कर रहे होते हैं। तो रीगेन कब करेगा इंसान, राइट? रीगेन सिर्फ तब होता है जब वो इंसान कुछ नहीं कर रहा है और जो है वहां है। ये कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। सो दो चीजें एज ए ह्यूमन हमें करनी पड़े। वन इज एक्शन, काम करना, एंड वन इज द थॉट, बीइंगनेस। मतलब एक तो है हम सोचते हैं, हमारी सोच की एक अपनी दुनिया है, एक सबकॉन्शियस वर्ल्ड हर इंसान के साथ, पर एट द सेम टाइम उसके साथ एक कॉन्शियस वर्ल्ड भी चलता है जिसमें उसे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इन दोनों के राइट बैलेंस से ही कोई भी इंसान जो चाहे वो पा सकता है। इंसान को ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं बोलते। ह्यूमन बीइंग का मतलब है कि, और बहुत सारे साधु और जो बहुत ग्रेट सेंट्स है वो ये बोल के भी गए हैं, दैट यू हैव द कैपेसिटी, that if you are sitting at a place, that your thoughts merely change the place and positions of the things outside of you. And it goes very opposite with the Newton's third law of motion. Newton's third law says that every action requires equal and opposite reaction, right? Which is partly true, even with the spiritual sense. But there's also this concept that a lot of people say if, that if you have this power in your thought, this stability in your body, then you can move and change and shift things according to your beliefs and faiths and desires. This is so interesting, right? हमें छोटी छोटी चीजों के लिए कितना सारा काम करने बताया जाता है। आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे, राइट, कि उनको आप कोई भी काम दे दो वो बड़ी मेहनत करते हैं,
पर वो काम ठीक से नहीं हो पाता। एंड वो छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत घिसते रहते, खाना भी बनाना है, कुछ भी करना है, वो बहुत मेहनत करेंगे, पर कुछ तो हो जाएगा कि जिससे वो एंड टाइम पे ठीक से ना हो पाए। एंड देन दे स्टार्ट अगेन फीलिंग बैड कि यार मैंने इतनी मेहनत, मे बी दिस वर्ल्ड इज नॉट फेयर, मे बी दिस, मे बी दैट। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट as a human you have to stop every hour and so and ask yourself, how are you feeling good? और सबसे पहले तो काम करने से भी पहले अपने अंदर वो पीस लाना बहुत जरूरी है, वो मॉइस्चर लाना, वो एंथुजियाज्म, वो क्रिएटिविटी लाना, और फिर उसके बाद काम शुरू कर। कभी कभार ऐसे होता है कि हम ना हमारे इमोशंस को करेक्टली समझ नहीं पाते। हमें, जो समझ लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ लोग अपने बच्चों को, जैसे उनकी शादी करानी है या उनका रिजल्ट आने वाला है, कुछ भी लाइक और करो और करो और सजो और पढ़ाई करो और ये करो और वो करो, एंड एंड विच बेसिकली मीन्स कीप रनिंग, कीप रनिंग। तुम्हें नहीं पता कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खुश नहीं है, बट जस्ट कीप रनिंग। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे दोस्त कम होने लगते हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। अब उन जिम्मेदारी को अपना सर का ताज समझ लेते हैं कि दिस इज हु आई एम, इफ आई एम अ मदर, इफ आई एम अ working person, whatever I am. This all responsibilities become this thorns in my head. And instead of living a life, I'm just merely getting dragged by them, right? So there are few things that you can do in your daily life that would ensure कि आप कभी भी ना अपने रास्ते से, खुद से उतने दूर ना जाए, क्योंकि जितना आप खुद से दूर जाके चाहे जितना भाग ले, आप ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाएंगे। और आपको रास्ते में इतना ज्यादा दर्द होगा ना, जो इंसान खुद के करीब नहीं रह पाता, खुद की बॉडी में नहीं रह पाता, वो बहुत सफर कर, और किसी को उसकी सफरिंग दिखती भी नहीं। एंड आई थिंक इस ओके, सो फॉर दिस देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू इन योर डेली लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ भी जब आप उठ रहे हो, ओके, उठे बराबर क्या थॉट्स मुझे आ रहे, मैं क्यों अपना मोबाइल जाके टच कर रही हूँ, क्या होता है अगर मैं मोबाइल नहीं टच कर, क्या मुझे कुछ ऐसा याद आता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर नाश्ता करने जा रही हूँ, क्या क्या दिमाग में चल रहा है मेरे, वो टाइम से जब मैं सोकर उठी और नाश्ते को गई, उस दौरान क्या चल रहा है, क्या मैं खुद के साथ खुश हूँ, क्या मुझे किसी चीज से डर लग रहा है, मेरी सांसें कैसे चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग इतने परेशान रहते, चलते चलते ऐसे उनके पैर क्रुकेड होने लगता है, ऐसे गिरने लगते हैं, यहाँ वहां जाके टकराने लगते। स्टॉप, एवरी टाइम दैट हैपेंस डू नॉट जस्ट इग्नोर इट, आस्क योरसेल्फ क्या हुआ है, अपना नाम लो, खुद से पूछो, अंजलि क्या हुआ है, देयर एनी प्रॉब्लम, किसी और से नहीं तो तुम मेरे से बात कर सकते हो। हैव टू टेल योरसेल्फ दैट आई एम सेफ इन विथ माई सेल्फ, I can protect myself. I am loved, I am safe, and I'm okay. और ये affirmation हमें सबका, हमें consciously उतनी बड़ी नहीं लगती है, but deep down something in you relaxes when you touch your heart and say I'm fine, I'm doing good, I'm good. You feel okay till your toes and hands feel relaxed. आप जैसे अभी भी बैठ के आप कोई अच्छी सिचुएशन सोचोगे ना, आपकी बॉडी अलग रिएक्ट करेगी, you'll smile more. That is the beauty of your brain. It's a beautiful instrument, but it's your instrument. You use it as you want. Your hands, I'll tell you, लोग बहुत सारे कुछ ये बोलते हैं, आपके पास, आपसे जब से पैदा हुए आपके पास हाथ है, राइट, पर आपने आज तक कोई मर्डर नहीं किया। इंटरेस्टिंग है ना, कर लेना चाहिए था एक हाथ किसी का, तो क्योंकि हाथ तो दिए भगवान ने, पर नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे हाथ हमारे काबू में। पर जैसे हम सुबह उठने के बाद ब्रश पकड़ते हैं, हमें कोई उसको सिखाना नहीं पड़ता किस तरह ब्रश करना, तो नेचुरली हो जाता है। इट्स ऑल ट्रेनिंग, राइट? तो ब्रेन इज ऑल्सो लाइक दैट। आई हैव अ वेरी सिंपल थियरम फॉर ऑल द पीपल हु overthink. Okay, overthinking is not a problem. It's actually your brain is such like a beautiful instrument, an entertainment piece for you that will always support you, always tell you the best answers, the fastest answers for your problems, unless it has gone rogue. हमारे कंप्यूटर में भी जब कोई वायरस आ जाता है, इवन दो वो कंप्यूटर में ढेर सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, बहुत सारी अच्छी चीजें कर सकता है, बट इट बिकम्स यूजलेस. So for all of those overthinking parts of ourselves, all we have to do is one,
first and foremost thing that you should ask yourself, is this thought making me feel bad? First question. If yes and no. If no, then okay, I can maybe continue on this path. And if it is making me feel bad, then I have to think deep. First of all, if there is something that doesn't make me that makes me feel bad, it simply means that there is more information kept in this thought, or maybe I'm just thinking wrong. Because हमारे दिमाग का प्राइमरी काम है हमें आगे बढ़ाना. अगर वो उल्टी सीधी बातें पहुंचा रहा है हमारे पास कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमने ऐसे कैसे किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें गिल्ट, ये सब बकवास अगर तुम्हारा दिमाग बता रहा है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि तुमने या तो उसको गलत कोई फूड दिया है, कोई गलत चीजें देखी, गलत लोगों के साथ रहे, तब ये दिमाग चीज, कोई गाना भी जब हम सुन लेते हैं बार बार बजते रहते, तो कई बारी जो ये उल्टी सीधी बातें हमको आती है कि हम उतने एफिशिएंट नहीं है या ये कर पाएंगे कि नहीं, ये सब इसीलिए आती है बिकॉज हमने कोई किसी का गाना सुन रखा जिसने हमको 4 बार वो बात बोली है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या कोई ऐसा सीरियल देखा है जहाँ पे मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा उदास रहता है पूरा टाइम, उसके हाथ से हर चीज गलत होती है और उसके साथ हमेशा गलत ही होते जाता है और वो रोते रहता है. तो ये याद रखना है, पहले पूछना है am I happy or am I sad? If I'm sad, then why am I sad? कोई गलत गाना है या फिर कोई ऐसा डर है जो मैंने पाल रखा है, कभी कोई इंसिडेंट बचपन में हुआ है एंड फिर वो हमने उसको प्रॉपरली निकाला नहीं अपनी बॉडी से, तो वो रह जाता, और फिर वो जो डर है धीरे धीरे अपना रंग अलग अलग चीजों में दिखाते रहे. तो अगर मुझे डर है किसी बात का, तो मैं उसके अंदर पहले झांक के देखती हूँ. एवरी फियर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ. कभी कभार तो जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है ना, सबसे पहले जाके वही, आई विल अश्योर यू, जितना तुम्हें डर लगता है ना उससे कई ज्यादा इजी वो चीज है. और नेवर टेक योर सेल्फ टू सीरियस कि ऐसा हो गया तो क्या, ऐसा इट्स फाइन, कुछ तुमने किया जो ठीक से नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, यू विल गेट अनदर चांसेस. जो भी चीजें तुम्हारे लिए है जो तुम ट्रूली चाहते हो, वो बार बार अपॉर्चुनिटीज खुद को प्रेजेंट करे. इट इज इनएविटेबल, इट इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स. तुम यहाँ हो ही इसीलिए बिकॉज तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिले, और वो मिलने का सही तरीका भी तुम्हारे पास. एज लॉन्ग एज यू लर्न हाउ टू कीप योर सेल्फ हैप्पी and feel that I can do anything that I want. And even if I don't, I am still happy with myself. It would be nice to get a new house. It would be nice to get a new car. And I'm going to work really hard on it. But at the same time, even if I don't get all of it, I am happy. You know why I'm happy? Because I'm happy with myself. I'm there in my own body, enjoying my own company. One of my teachers used to say that if you go to a coffee date with yourself and if you are bored with yourself and you're watching camera or your mobile phones, that means you're bored with yourself. And if you're bored with yourself, why would anyone else would like to have a coffee with you, right? That is something that can never be taken lightly. ये सारी जो चीजें ना, ग्रैटिट्यूड, चीजों को थैंकफुल होना, लोगों से प्यार करना, कम्युनिटी का साथ, हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं और हमें लगता है जो ये मेडिसिन और जो स्ट्रॉन्ग चीजें हैं वो ज्यादा कारगर हो. पर ये कारगर क्यों होती है? बिकॉज व्हाट दे से इज, हर एडिक्शन का भी यही एक प्रोसेस होता है. कोई एक फियर है जो छुपा है और वो निकलने का सही तरीका नहीं आया, देन फिर वो अलग अलग चीजें ट्राई करता है उससे दूर भागने के लिए. बिकॉज कोई भी जो एडिक्शन होता है ना, वो हमको बस एक छोटा सा एक फेथ देता है दैट मे बी सॉर्ट हो गया, एक टेम्पररी डिल्यूजन देता है. तो जब तक वो कोई चीज पूरी तरह किसी चीज का सोल्यूशन नहीं देती, बस आधा अधूरा देती ना, वो अडिक्ट कराती है खुद से. दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. अंजलि, यू हैव टू टेल मी ओके वेयर टू स्टॉप बिकॉज आई जस्ट डोंट नो when you guys want me to stop. Okay, so you give me an indication. I'm not checking the clock. Okay, so yeah, I also would like to, if you have any questions regarding this, or when I'm speaking there are some points that I might have missed, then do write it in the chat box. कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये टॉक छोटा होता है एंड जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वही बहुत बड़े हो जाते हैं, एंड आई लव टू आंसर क्वेश्चंस. Yeah. So, okay. So we were talking about burnout and exhaustion, and you have to remember that कोई भी चीज एकदम से बड़ी नहीं. ये भी जो हुआ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब हमने कोई सिचुएशन को याद किया,
और वो सिचुएशन याद करने के बाद से हमारी बॉडी में जो हलचल हुई वो एक दिन की करनी नहीं। ये जो डर है, आप छोटे बच्चों को देखें, वो सिमेट्री के पास रहे या बर्थडे केक के पास रहे, उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं आता, देर ऑलमोस्ट ओके। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे डू नॉट गिव वेटेज, too much weightage to certain things and too less weightage to certain, they're kind of okay with everything। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, हम उनको सिखाते हैं सर्कस जाना खुश होना, किसी का डेथ हुआ बुरी बात, यहाँ पे रोना चाहिए, किसी ने तुमको चिल्ला, आप छोटे बच्चों को बहुत चिल्ला के भी बात करें, दे डोंट अंडरस्टैंड सो मच, राइट? आप उनको शब्दों, दे डोंट अंडरस्टैंड सो मच। धीरे धीरे फिर उनको सिखाया जाता है, ओ तुम इस चीज से डरो, है ना, आग से डरो। ये इस तरह की हमको वेरी गुड वैभवी सोशल कंडीशनिंग हमें दी जाती है, दैट इससे डरो इससे खुश हो, हम ही सिखाते हैं सब कुछ। और फिर एक टाइम बाद हमें उसके लिए दवाई देनी पड़ती कि नहीं बाबा इससे इतना मत डरो, ये उतनी बड़ी चीज है नहीं। ये हमारी हिपोक्रेसी है जो हम खुद ही के साथ खेलते रहते, इवन दो ये चीजें कुछ हद तक हमें सही इसीलिए लगती है बिकॉज वो टेम्पररीली हमें वो सोल्यूशन दे देती, हम बच्चे को एक जगह शांति से बैठा पाते, उसको सुला पाते। पर वो जो हम बार बार इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन रही है। कोई बच्चे जैसे कुछ चीज गिरा देते हैं, तो समझ लीजिए बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, मिट्टी से लदे हुए पूरा, तो घर में आए और उनके घर पे व्हाइट कारपेट बिछाए, सोफा ये वो और आए, और कोई थोड़ी सी एक मदर है जो थोड़ी बहुत एवॉल्व है, शीड बी लाइक, उसको वो बच्चा फिर भी प्यारा लगेगा, और उससे वो देख के खुशी होगी कि उसका बच्चा खेल पाता है, ही इज हेल्दी। वो आके उसको बोलेगी हाँ फ्रेश हो जाओ, कारपेट पे मत करो वगैरह वगैरह, बट स्टिल दैट चाइल्ड इज ब्यूटीफुल टू दैट। वही सोचे कोई बड़ा आदमी है, या लड़कियों के साथ तो ये बहुत बारी होता है कि हमें एक लेबलिंग दी जाती है दैट यू शुड बी दिस, तुम्हें ऐसे दिखना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे बैठना है। एंड जैसी उस परफेक्ट इमेज से थोड़ा सा भी हम हट जाते हैं, देन दैट स्ट्रेस स्टार्ट। स्ट्रेस होने के लिए ना कोई स्पेसिफिक चीज की जरूरत नहीं है। कई बारी ऐसा हो जाता है कि हमारे बाल ठीक नहीं है, तो भी वो कंटिन्यूअसली वो चीज का जब हमको वो मिलते रहता है क्रिटिसिज्म, वो भी चीज एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस का रीजन बन जाती है। वेट, हाइट, कलर, प्रोफेशन, ये सब सिर्फ तरीके हैं जो हम ही ने बनाए हैं या हमको किसी ने सिखाए हैं। दिस इज द मेजरमेंट दैट यू शुड मेजर योर सेल्फ, एंड यू शुड ग्रेड योर सेल्फ कि मैं कितनी बड़ी हूँ, छोटी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ। हम अपने काम को भी इतना क्यों अपने सर पे चढ़ा लेते? हम एज ह्यूमन हमेशा एक डिस्टिंग्विशिंग पैटर्न चाहते, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस कौन अच्छा है कौन बुरा है। डिस्टिंग्विशिंग पैटर्न होने से क्या होता है, हम खुद को वहां पे पहुंचाना चाहते हैं जहां हम जाना चाहते हैं, राइट? तो हम फिर धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा खुद को बाउंड्रीज देते हैं, यू शुड लुक दिस वे, you should walk this way, you should have this much money, this much people to love you, and this and that। और ये बाउंड्री बनाने के बाद बोलते एग्जैक्टली हम इस बाउंड्री के अंदर है तो हम प्यार, रिस्पेक्ट, खुशी डिजर्व कर। और अगर हम थोड़ा सा भी इस बाउंड्री के इधर उधर है ना, तो देन वी डोंट डिजर्व इट, वी डोंट डिजर्व टू हैव। अगर हमारे बाल खराब है, हम ठीक नहीं दिख रहे हैं और हम बाहर जा रहे हैं, तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि लोग हमें प्यार से ट्रीट करे, अच्छे से बात करे, हमें वो रिस्पेक्ट दे। व्हाई नॉट? यू एग्जिस्ट इज अ प्रूफ इनफ दैट यू डिजर्व everything on this planet, all the luxury and all the abundance। कैपिटलिज्म का ये एक थोड़ा सा रॉन्ग पार्ट है, उसके बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी है, बट उसका ये रॉन्ग पार्ट क्या है, दैट इट काइंड ऑफ वांट्स टू टीच यू टू जज योरसेल्फ, it wants to have that parity between up and down, and in that case what happens is we become critical with our own self, we stop giving, हम खुद ही को बेहिसाब अनरीजनेबल लव देना छोड़ देते हैं। ये काम नहीं किया ना तुमने, यू शुड बी गिल्टी अबाउट योर, इस टाइम पे नहीं हुआ ना तो यू शुड बी गिल्टी अबाउट योर। और ये गिल्ट में रहना एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बन जाती है। वो गिल्ट कभी कभी हमारा इतना प्रेशियस फ्रेंड बन जाता है कि कभी कभार लोग जब खुश भी होते हैं ना, दे आर लाइक सडनली वो सब कहाँ चले गए मेरे सारे दोस्त, गिल्ट और टेंशन वो कहाँ चला गया, अजीब सा लग रहा है यार, एकदम खाली खाली लग रहा है। अपने कुछ ग्रम्पी ओल्ड लोगों को देखा है? हर बूढ़ा इंसान अपसेट नहीं होता, बहुत सारे खुश भी रहते हैं पर कुछ ग्रम्पी रहते हैं।
बिल्कुल ना खुश रहते, वो खुद तो खुश रहते ही नहीं है, बट इफ दे सी अ चाइल्ड लाफिंग, दिल गो एंड आस्क देम व्हाई आर यू लाफिंग, क्या खुश होने लायक बात ही क्या है, बिकॉज दे आर सो बर्डन विथ एवरीथिंग। आप बूढ़े लोगों को छोड़िए, कितने सारे टीनेजर्स भी आपको ऐसे मिलेंगे, दे आर सो स्ट्रिक्ट, देयर आईब्रोज आर सो कंट्राइव्ड ऑल द टाइम, माथे पर हमेशा लकीर रहती है, एंड दे आर सो टेंस्ड, हाँ आगे करना है, आगे ये करना है, वो करना है, and they forget that why I need to smile and laugh, because somehow हमको सिखाया जाता है जो जिसके पास जितना ज्यादा टेंशन है वो उतना ज्यादा काम कर रहा है, उतने ज्यादा पैसे कमा रहा है, and that is literally the biggest myth of all time. A lot of people, they don't even do so much work, but they try to tell, oh मैंने इतना काम किया ना, बस I cannot tell you मेरे काम में तो इतना टेंशन है, इतना प्रेशर है, the हाईएस्ट लाइक लेवलिंग बताने की कि मेरा काम कितना ज्यादा टेंशन भरा फ्रस्ट्रेटिंग है, इज टू स्टार्ट बाय सेइंग कि कितना ज्यादा उसमें उसमें मुझे काम करना पड़ता है, कितना ज्यादा प्रेशर है, कितना ज्यादा डिटेलिंग है, एंड मेरी लाइफ कितनी हॉरिबल है उसके वजह से। एंड सम पीपल हैव लाइक अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग इट कि हाँ बहुत कुछ अच्छा है, बट बहुत काम, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता खुद के लिए। And this has become like a norm to say. You will find that people are working at highest of positions, whether it is, IS officers and people working at World Bank, and even they find time for themselves because they know if they don't do, they'll get exhausted and they have really strong responsibility on their shoulders. But if they just feel that burden on their shoulders, they are done in that moment. You cannot afford to be this person who takes all of this load on you, because हमको ऐसा लगता है आज मैं ऑफिस को नहीं गया या मैं काम को नहीं गया या मैंने ये काम नहीं किया, somehow it will get added up on the next day और ये सारा burden मेरे shoulder पे जमा हो जाए. If you leave the job or if you die tomorrow, someone else will come up and take up all of this job and they'll start working out. The only person that needs you most is yourself. जब हम यहाँ पे आते हैं, a lot of spiritual teachers will also tell you the whole reason हम इतनी बच्चे होने से लेके अपने लाइफ के एंड समय तक इतने अलग अलग प्रकार के काम भी क्यों करते हैं, इज बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आवर ओन सेल्फ। आप जब भी कोई नया काम करने जाते हैं, आपको डर लगता है, आपको नए एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है, नए लोगों से मिलना पड़ता है, कई बार हमको ये भी नोटिस होता है कि हम चाहे जहां पर भी चले जाएं, हमारी सिचुएशन गोल मरोड़ होके उसी तरह की हो जाती है जैसे पहले थी। हम एक सिचुएशन से भागने से, पर हम उसी तरह की सिचुएशन में फंस जाते। इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ चीजें लेसन नहीं सीखे, तो जब तक हम वो सीखते नहीं, यूनिवर्स हमको उसी उसी सिचुएशंस में डालते जाते। पर जब हम वो सीख जाते हैं, हमें नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा अबंडेंस और नए प्रकार की चीजों को सॉल्व करने में बिताना पड़ता है। द इंटायर reason that we are alive is to know ourselves better, to clear the things that are holding us back. बस अगर आप उतना भी ध्यान देने लगे ना कि यार मुझे इस मोमेंट पे इस चीज का टेंशन क्यों आ रहा है, कुछ हुआ है, किसी ने मुझे किसी इस चीज को लेकर डराया है पास्ट में, ट्रॉमा किस तरह से अपना रूप बदल के अपने खुद को अपने सामने प्रेजेंट करेगा हम नहीं समझ, पर अगर हम इग्नोर करते गए ना, तो वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है। कभी देखिए लोगों को आदत रहती है स्नैप आउट करने की, स्नैप आउट करना पता है आपको ना, छोटी छोटी बात पे चिल्ला देने की, है ना, अरे, एंड देन दे हैव अ एक्सक्यूज, मैं परेशान था, मैं टेंशन में था, मैंने चिल्ला दिया, इट्स ओके, इट्स नॉट ओके, इट इज नॉट ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, two things in situations like that. One, no matter what mood someone is in, they do not have the right to behave that way with you. Whatever they are going through, mentally, physically, whatever they are going through, you have the right to ask respect for yourself. Okay? Second thing, अगर मैं ऐसा खुद हूं, if I do something like this, then I should take charge. क्योंकि ये हमको सिखाया गया है, हमने देखा है हमारे किसी अडल्ट को इस तरह का काम करते हुए कि यार ये टेंशन अगर मैं चिल्ला देता, इस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बिकॉज आई एम वेरी वरिड। व्हाई आर यू वरिड? एक तो वरी करना प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कोई दूसरा इंसान आके तुमको उससे निकालने की कोशिश कर रहा है, तुम उस पर चिढ़ रहे हैं, एंड दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योरसेल्फ। जब हम ये छोटी छोटी गलत हैबिट्स अपने अंदर से निकालते हैं ना, तो हम नई चीजों को इनविटेशन देते हैं। हम ये जो आई थिंक 29th या 25th को एक और जो शो है, इट इज ऑन गेन एंड लॉस, विल लर्न अबाउट दिस, कि जैसी एक चीज आती है दूसरी जाती है। तो
what we are filling our days with is important. So yeah, I would like to, end this talk with this idea that start giving more attention to yourself, to how you're feeling, what you're feeling in the moment, and you'll then start finding कि ये जो इतने बड़े वर्ड्स है एग्जॉशन एंड स्ट्रेस ये आपके पास ज्यादा नहीं आ पाएंगे बिकॉज आप छोटे से भी कोई सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम अपने साथ होती है उसको आप ठीक करने लगते सो यू डोंट stray away from your path so much. Okay. Yeah, and at the same time कभी ऐसा कुछ होता है आपको कुछ इस बारे में कभी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जो आपको पूछना है एंड यू डोंट नो what to do, you can simply drop me a message and I'll do my best to answer you out. Yeah, Anjali. Okay, it's a very wonderful knowledge which is given by you, ma'am. And I hope our audience, many of our audience, learn new things from this session. Once again, I would like to thank you for joining us and sharing your experience and precious time and knowledge with us. So, ma'am, there are some of the questions which our audience wants you to be answered. So, will your permission say, first question I would like to ask is like what are the early warning signs of burnout and exhaustion in our daily life? It's a beautiful question. You know why it's beautiful? Because there's no one answer to it. हर इंसान का चीज बिगड़ते वक्त जो फीलिंग्स होती है बिहेवियर होता है वो चेंज होता है. Why I'm saying this is एक गेम रहता है. It's an Olympic level game और it's an international game. तो वहां पे दो प्लेयर्स को चुना गया इंडिया से एंड वहां पे वो प्लेयर का ना जो एक इंडिया से चूज किया गया था उसका एक स्टाइल था थ्रो करने का. इट वाज नॉट प्रोफेशनल एट ऑल पर वो काम कर देता था और वो बहुत उसकी रैंकिंग वगैरह हाई थी. धीरे धीरे जो उसका मास्टर था जब स्पॉन्सर थे तो जब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा ना ही स्टार्टेड टू बिकम लाइक द अदर पीपल. ही वांटेड टू बी प्रोफेशनल. उससे लगा मैं इस तरह से करूंगा ना सो वो चीज ठीक होगी ऐसा. एंड धीरे धीरे जो जिस तरह से वो थ्रो करता था वो बदल गया. उसकी रैंकिंग पीछे आ गई वगैरह वगैरह. एंड देन स्पॉन्सर थॉट यू नो व्हाट लेट मी जस्ट ट्राई डू समथिंग दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट. हम वैसे भी हार रहे हैं. लेट मी मेक देम हैप्पी. है ना. इनको खुश करो. इनको पार्टी में लेके जाओ या फिर लेट देम जस्ट प्ले द गेम. एंड ही स्टार्टेड डूइंग दैट फॉर अ वीक. He said, let's forget about it. Let's just do what we can and we'll forget about it. So when they were going to the game, they said, let's just enjoy this. जो भी होगा देख लें. And when he was very happy, he used the same way of throwing. And he did that और दोबारा चीजें ठीक होने लगी. जब हम खुश होते हैं ना तभी भी एक चांस होता है. हमको हमारे बिहेवियर को नोटिस करना चाहिए. क्या है जो हम करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल जब मैं नॉर्मल रहती हूँ तब मैं गाने सुनती हूँ. आई डांस. आई टॉक टू पीपल. आई स्माइल. दीज आर नॉर्मल साइंस दैट अ पर्सन इज फीलिंग हैप्पी. मजाक करना, प्रैंक्स खेलना, दिस इज माई वे ऑफ बीइंग नॉर्मल. तो एक ना कंट्री थी उसको कॉलोनाइज करना था एक छोटी कंट्री को. व्हाट इट डिड वाज उसने कुछ ज्यादा नहीं किया. उसने बस बोला इन लोगों से ना गाने बंद करवा दो. कोई गाना नहीं गाया. गाना गाना इलीगल. बस वो लोग धीरे धीरे डिप्रेस होने लगे. उनकी क्रिएटिविटी क्यूरोसिटी कम होने लगी एंड दे बिकेम कॉलोनाइज्ड एंड दे आस्क्ड दिस बिगर कंट्री कि आप ले लो हमारे. दैट इज द पावर ऑफ बीइंग ऑन दिस साइड एंड दैट साइड. अगर हम चीजें बहुत सारी उधर के साइड की कर हम गाना नहीं गा रहे हैं. हम एक जगह ज्यादा बैठ रहे हैं और मोबाइल पे ज्यादा हो रहे हैं. ये सब एक इंडिकेशन है. कोई भी इंसान बेवजह ही अपना मोबाइल पकड़ के नहीं बैठा रहा. या तो वो लोनली है या तो उसे कोई चीज नहीं सोचनी है इसीलिए वो कर रहा है. कोई इंसान बिना वजह ही जो उसको काम करना है जैसे उसको पढ़ाई करनी है उससे भाग नहीं रहा होता है. उसको स्ट्रेस आ रहा है वो कर. तो दिस इज समथिंग एटलीस्ट खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ. हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं. हम कोई अंदर का जो दर्द है उससे भाग रहे हैं. सो द साइंस इज कि जब हम खुश है तो नोटिस करें कि हम क्या चीजें करते हैं. आपके आसपास के लोगों को ये बड़ी इजीली दिख जाता है. और जब हम नहीं है और स्माइल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन. जो इंसान कम हंस रहा है ना पब्लिकली और पर्सनली भी खुद के साथ तो इंसान हंस ही लेता है. नहीं हंस रहा है ना देन इट्स अ प्रॉब्लमैटिक. अगर एक जगह बैठा नहीं जा रहा है ना बार बार चैनल्स चेंज कर रहे हैं गाने चेंज कर रहे हैं ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं या बार बार काम करते वक्त भी एक ही काम 4 बार करना पड़ रहा है. इट्स एन इंडिकेशन दैट पर्सन इज नॉट ग्राउंडेड.
not happy. I would really like to give you more, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम एक दो एग्जांपल्स को इंक्लूड करते हैं तो हमें लगता है सिर्फ इतने ही है, बट ऐसा नहीं है। हम हर एक का अलग तरीका होता है खुद को एक्सप्रेस करके दिखाने। कोई इंसान जब बहुत परेशान होता है एकदम शांत हो जाता है, कोई परेशान होता है वो चिल्लाने लगता है, कोई परेशान होता है तो वो अलग अलग तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। ड्रिंकिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ओवर ईटिंग are a part of all of these things. So yeah, I would, yeah, again, it revolves around this idea that, focus on yourself, think how you're feeling. Yeah. So, ma'am, how can we differentiate this exhaustion and burnout? Okay. So how do we differentiate this exhaustion and burnout? It's a very simple way of doing it. If I'm sitting still at a place, just give me a moment, okay? There's someone at my place. Okay? No problem. हम शोज करते हैं, हमारे आसपास का वर्ल्ड नॉर्मली चलते रहता है, तो जो भी लोग घर पे रोज आते हैं वो आ ही रहे। ओके, yeah, so how do we differentiate between if I'm exhausted or if I'm happy, right? So I think it is very much related to the previous question जो हमने बात की थी, that I think the one important way to at least consciously know that if I am exhausted or not is first of all see that if I'm sitting at a place and I cannot sit, like, at least like for 5-10 minutes, if I just cannot be with myself, if my head is shouting so much with a concept, with an idea or with a situation, then I'm stressed. कभी कभार हमारे जैसे कोई सिचुएशन हो जाती है, वो 1 महीने पहले हुई, पर क्योंकि हमने उसको सॉर्ट आउट नहीं किया ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे कल ही हुई है, क्योंकि दिमाग में हमेशा वो चल रही। सो स्टॉप देयर एंड टॉक विथ योरसेल्फ दैट क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, how why is that thing making me so nervous, is there something that I can do about emotionally or actually in real life? Okay, so the way to differentiate is very simple. Just a moment, okay? Yeah. So one is that, okay, that I cannot be with myself anymore. I have to be on the mobile or talk to someone. That is one way of knowing that I am I'm jittery. And second way is that this person doesn't smile so much. इसके नॉ वो किसी को किसी का बर्थडे है पता होने पर भी कॉल नहीं कर पा रहा है, डर लग रहा है कॉल उठाने से। तो दिस इज वन वे ऑफ अगेन नोइंग कि किसी जब हमें ये नहीं हो रहा ना कि किसी से जाके उसको थैंक यू बोले या किसी और को खुश करने की जब इच्छा नहीं हो रही, मतलब कि हम खुद एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ग्रैटिट्यूड इज द easiest way to regain your energy and also to know कि that we are okay। जो इंसान खुश नहीं होता ना, वो उसको कोई चीज के लिए थैंकफुलनेस नहीं होती, सब कुछ वीरान और ड्राई हो जाता है। सो या So it's very effective for all our audience, and that was a very good piece of advice. Thank you so much, ma'am, for answering these questions. Again, thank you, ma'am, for for everyone to attending today's webinar. And if you have any additional questions, you can contact us by email or telephone us. We are very happy to provide you additional support to you